पर क्या करूं मेरे दांत का पापी पेट बोले मर रहे हो क्यों तुम खाम खा अजीब था पैगाम सा न रह गया ये जंगल मेरे काम का क्या करूं अपना हाल कोई रास्ता बन के अब इंसान मेरा नाश्ता हाउ थैंक यू सो मच। लाइट्स लगा दो अभी, चलेगा ये सब तो चलता रहेगा। हाँ अब बात तो नहीं हो सकती वीडी इस सब हल्ले गुल्ले में बिकॉज वी हैव दीज फैंस जो कि मतलब दीवाने हुए पड़े हैं तब से जब से यहाँ पे सब आए हैं। That's why first and foremost I want to thank everyone who's over here, all the members of media, all the fans, everyone, because from day one, literally from day one, I've had this support, this love. Whenever there's been any negativity towards me, whenever there's been any kind of, hate towards me, you guys have stood up for me. Even members of the media, I mean this from my heart. All the paps also of you over here. I genuinely mean it. You all are my family. You all have stood by me. आप लोग हमेशा मेरे साथ रहे. So thank you. I want to say thank you to all of you all first. Lovely. Okay. And because this film is like super special, ये हम लोग ने lockdown में start किया था. So Nitin, if you don't mind, please. Can I invite everyone on Please stage? do the honors, Varun. Please. First, I just want to call my leading lady, who's also a big hero of this film, and I think you'll all know who she is. Obviously, she's in a new look. Kriti Saran. दादा ये सब ठीक है, अभी हम लोग जमीन पे बैठ जाएंगे, ठीक है, चलेगा, डोंट वरी, थैंक यू, वेलकम कृति। Yes. Okay. Hi guys, I can't see anyone, the light is so strong, but कैसा लगा ट्रेलर? अच्छा लगा तो एक हाल तो बनता है ना। रिक्लाइनर्स में एकदम ऐसा क्लॉज गाड़ा दिया सब लोगों ने ऐसा। ये जो स्पॉटलाइट हम पे आ रही है, ये बंद करके कैन वी जस्ट हैव नॉर्मल लाइट्स? या तो इन लोगों पे भी एक स्पॉटलाइट डाल दो। हाँ, ये थोड़ा अभी भी नहीं चेहरों पे ये जो पीछे वाले लाइट्स और जो स्क्रीन के लाइट्स है वो ऑन कर सकते हैं? थोड़े और लाइट्स ऑन कर सकते हैं स्क्रीन के। आप बोल रहे हो, सुन रहे नहीं आपकी? अरे यार यही तो प्रॉब्लम है। पेशेंस, भेड़िए को गुस्सा आता है, सबको क्यों आ रहा है? Next, I think we want to call the captain of the ship. जिस आदमी ने ये कहानी के बारे में सोचा, जो निर्देशक है ये कहानी के, want to call none other than Amar Kaushik. एंड मतलब जैसे कि मैंने कहा कि ये फिल्म जो है ये लॉकडाउन के टाइम शुरू हुई थी, एंड आई स्टिल रिमेंबर कि जब पहली रेकी की थी अमर और निरेन भाई गए थे, बहुत मतलब निरेन भाई डर गए थे कि वो वापस घर नहीं वापस आएंगे, एंड दे सेड रेकी करके गए एंड इट वाज वेरी डिफिकल्ट। ओनली आई कांट थिंक दैट हमारे इंडस्ट्री में ऐसा कोई भी प्रोड्यूसर है जो ऐसी फिल्म को उस वक्त पे बैंक रोल करता जहाँ हमें पता नहीं था कि कहाँ फिल्म में आएंगी। सो आई वांट टू कॉल माई ब्रदर, माई फ्रेंड। मैं बदलापुर के बाद उनके साथ काम कर रहा हूँ। आई हैड अ वेरी स्पेशल एसोसिएशन। आई वांट टू कॉल नन अदर देन डीनू, दिनेश विजन। असली भेड़िया। And obviously this film is going to be incomplete without, according to me, I found like 2 brothers on this film, and I have a very, very special association with Abhishek on this film. We really
मतलब I was a fish out of water on this film, and honestly मैं अपने lines इसके साथ rehearse करता था. He would help me so much during this film, and along with him we have a newcomer. तो whenever a newcomer, I believe this क्योंकि मेरी 10 साल पहले debut हुई थी. So you all have to give the most love today, the most love to Palin, who's over here from Itanagar, from Arunachal Pradesh. So Palin and Abhishek, please join us on stage. And the last and definitely not the least, he's a legend in our film industry. मतलब मैं तो बहुत वक्त से उनका fan हूँ और अभी भी हूँ, और I've been finding ways to work with him, and luckily Amar got him in our Bhedia world, and that's none other than Deepak Dobriyal. There's so many other people from our cast, our crew over here, who are going to come up and get us for the celebration. But obviously, Sachin Jigar, this is one of my most special collaborations. I know आप लोग ने मैडो के साथ भी बहुत ज़्यादा काम किया है, but they are the music directors that I have worked the most in my career also. So thank you, Sachin Jigar, for always being a part of my journey. Thank you, Niren Bhai, who's written this, the most funniest and coolest line story, who would rehearse the lines with me, and Abhishek, and you talk a lot of other things. And obviously, हमारे जो ज्ञानी बाबा है इधर, without this, sir, आप एक बार खाली audience को wave कर दो, please. I would like अमर आप एक बार कर लो introduction. एक बार नीरेन भाई जरा खड़े हो जाइए प्लीज. एंड ये नीरेन भाई हमारे, इन्होंने लिखी है ये फिल्म, और उनके बगल में हमारे जिष्णु जी, ही शॉट द फिल्म जंगल के बीच में बेचारे, बहुत मुश्किल से. थैंक यू. पूजा प्लीज, पूजा यू हैव टू stand up, yeah, Pooja. You're looking very nice today. इनकी अभी शादी हुई है, तो प्लीज congratulate her, everyone. Congratulations, Pooja. It's true, but no. Love you, Manjot. Okay, so I think we'll start with the Q&A. Yes. With your kind permission. All right, it's time for the media Q&A. आप लोगों के जो भी सवाल हैं, you can shoot those questions. और ये टीम भेड़िया उनका सामना करने के लिए all set है. Okay, just थोड़ा लाइट और इंक्रीज कर सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं, थोड़ा ब्राइट कर सकते हैं. हेलो. I think वो स्पॉटलाइट बंद हो जाएगा तो ये सही दिखेगा ना. हाँ, अभी परफेक्ट है. और बढ़ा दो. अभी गुड. और थोड़ा. हेलो, कैन आई आस्क? जी मैम, आ रहा हूं मैं, एक सेकंड. वी गुड राइट? चलिए जी. Oh, trailer, I mean, it's so offbeat, something we have never seen before in Hindi movies. So Varun, while everybody, first of all, Kriti, your look looks awesome. Thank you. We have been talking about it in the last few days. Thank you so much. Varun, though everybody seems to be doing comedy, a lot of comedy happening around you, but how challenging this role was for you? I mean, it comes across very difficult role. पहली चीज़ जो अमर ने मुझे कहा था जब हम लोग रीडिंग्स कर रहे थे, और उन्होंने मुझसे कहा था कि यार आप बिल्कुल कॉमेडी नहीं करोगे इस फिल्म में. तो मैं हमेशा इनसे पंच लाइन मांगता रहता था, ये लाइन मैं बोल दूँ, मैं ये थोड़ा कर लूँ, और अमर से बिल्कुल नहीं, आप कुछ मत कीजिए, क्योंकि फिर लोग आपको सीरियसली नहीं लेंगे फिल्म में. So it's all credit to Amar, I mean, the performance, and hopefully it lives up to his expectation first, because he's got a very high standard for performances. And इन्होंने इसके पहले obviously राजकुमार and आयुष्मान के साथ काम किया, वो very very fine actors. I love both of them. So hopefully I can, live up to them in Amar's eyes. बिल्कुल live up किया आपने सर. And I genuinely want to say that he's really worked very hard. I've seen him, with his पहला director मिला था जो शुरू में बोल रहा था मुझे abs नहीं चाहिए, तुम लेके आओगे मैं हटा दूंगा. So the way he's worked very hard, whether it was his look, his body, the animal flow and stuff that he was doing.
and there's a journey obviously of the character, like, and he was not doing anything else, so he was like just Bhedia all the time. Process, but I've always kept a ear out to hear what the audience is trying to tell me. Obviously, ये ऐसा नहीं है कि मतलब हर फिल्म में मैंने भी मतलब सुपर्ब काम किया है और अगर लोग क्रिटिसाइज करते तो उसी के लिए करते हैं. I'm always trying to hear, always trying to grow. एक वक्त था जब मैं भी थोड़ा वो arrogantly सोचता था कि यार नहीं यार सब कुछ तो चल रहा है, why should I even care what someone's saying, but there's always room for doing better, but at the same time I think as human beings we should, as an actor I should not run myself down also. So now अभी इस वक्त तो I'm trying to enjoy, I want to enjoy जो भेड़िया लेके आएगा, जो success जुग जुग लेके आई थी, so I want to just enjoy that. And genuinely I think क्योंकि मैंने audience की आवाज़ सुनी, that's the reason I want to do a film like Bhedia. That's the reason I want to work with a director like Amar, want to work with a producer like Dinu, because मुझे भी लगता है कि now as Indian cinema we are ready for this and we are not going to settle for less. मैंने फिल्में की है जहाँ the VFX has been very cringe worthy. अभी मैं यहाँ पे बैठ के वो झूठ उस वक्त जब प्रमोट कर रहा था obviously मैंने बोला होगा कि बहुत अच्छा है, डेफिनेटली, बट नहीं ये इंसान की फितरत होती है, मतलब उस वक्त तो कोई नहीं बोलेगा, बट नाउ व्हेन आई लुक बैक आई कैन से डेफिनेटली दैट देयर हैज बीन क्रिंज वर्दी मोमेंट्स इन द VFX, बट मैंने नहीं किया VFX, बट लोग एक्टर मैंने नहीं किया, बट आई कैन जस्ट ट्राई एंड वर्क विद डायरेक्टर्स एंड प्रोड्यूसर्स हु कैन ब्रिंग अबाउट दैट चेंज. तो अभी मैं अपने आप को थोड़ा और रिस्पॉन्सिबल मानता हूँ. Varun, Kriti and the entire team, congratulations to you all. Trailer is amazing. भेड़िया की बात करते हैं और जैसे आपने कहा कि इंसान की फितरत होती है, हर एक इंसान में एक एक भेड़िया छुपा होता है. ऐसी कौन सी चीज़ होती है जो आपका भेड़िया आपको ट्रिगर करता है कभी, both of you all? ऐसी क्या बात कभी गुस्सा you can say? Unprofessionalism. Me, I don't know, which makes me irritated sometimes. भेड़िया is very professional, but वो निभाता है अंत तक. आप में नीनू आप काफी ट्रिगर होते हो, आप बताओ. बाद में बताएंगे. I think जब जबरदस्ती लोग नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश करते हैं ना, I think that. दीपक सर, आपकी जो रेंज है ना वो दिखती है हर एक प्रोजेक्ट में, हर एक फिल्म में. जो भी आप करते हैं कुछ अलग ढंग से करते हैं, अलग नजरिए से करते हैं. और आज मेरा क्वेश्चन प्लीज कंप्लीट करने दीजिए. क्योंकि हाँ, तो आपकी आप अभी ने तो अपने स्पेनिश गाना भी गा दिया ऑलमोस्ट, तो इसमें क्या है खास, मतलब इसमें क्या ऑडियंस को देखने को मिलेगा आपके किरदार द्वारा? भाई पहले तो कहानी जो निरेन भाई ने लिखी है, इतनी अद्भुत कहानी है कि जब अमर भाई ने मुझे नरेट की थी, मैं वहीं पे चेयर पे हंस के गिर गया था, है ना. तो वो कहानी बड़े लंबे टाइम बाद इतनी प्यारी कहानी जो ग्रिपिंग हो और आपको एकदम से अपनी दुनिया का हिस्सा बना ले, तो वो कहानी थी सबसे पहली बात. दूसरा, अमर भाई का जो डायरेक्शन है, जो उनका तरीका है, जो इतने सरल तरीके से फिल्म बना देते हैं कि आपको पता भी नहीं चलता. इतने मतलब जो जटिल विषय हैं जितने भी अलग अलग, उन पे वो बड़े प्यार से कह जाते हैं. मतलब मक्खन पे जैसे वो तलवार चलती है या छुरी चलती है, उस तरह से. और बाकी डीनू भाई हैं हमारे, है ना, तो भाई जहाँ बुला देते हैं तो पहुँच जाता हूँ. बाकी ये नहीं, बाकी ये जो सारे लोग बैठे हुए हैं, इतने प्यारे लोग, इन सबके साथ. और वरुण का जो मैंने डेडिकेशन देखा इसमें, हम सब ने जो उन्होंने समर्पण दिया है इस फिल्म के लिए, चाहे मैं हूँ या अभिषेक या जो भी उनका ट्रेनर या डायरेक्टर या कोई भी, डिक्शन के लिए भी आप कोई भी उनको बोल सकता था कि यार ये कर देंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, एंड वो एक्सेप्ट करते थे. वो लेना ना देना उनकी वो है, लेकिन उन्होंने जिस गर्मजोशी के साथ हर चीज़ को वेलकम किया है, वो एक मिसाल है. और वो आपको ट्रेलर क्या फिल्म में भी देखने को मिलेगा. तो पूरी जो हमारी ये टीम है, और इसकी पॉजिटिविटी, यार किस किस का नाम लूँ, वो पूजा बैठी हुई है जिन्होंने पूरा जो प्रोडक्शन संभाला है, किसकी सचिन जिगर जो भी है, वो केको हमारा है ना, सब यार सब है, कृति, सब किस किस का नाम छूट जाएगा, वो शारदा करके नाराज हो जाएगी. मतलब किस किस का जो भी है, तो पूरी टीम यार, मतलब ये मेरी फैमिली टाइप है, फैमिली ही है. तो मुझे वैसे ही ट्रीट किया जाता है. तो मेरे फ्लोर चेंज होते हैं मैडॉक में, अभी 5वें पे, अभी 3रे पे आ जाओ, अभी 2रे पे, अभी 8वें पे. दीपक जी एक लास्ट एनरिके का गाना ताकि हम ये वो हो चुका है. हाँ जी, ये म्यूजिक नहीं है ना अभी, गा दो.
स्किप नहीं, वही आदत है यार वो। म्यूजिक नहीं है और राइस बियर भी नहीं है ना। और सब कृति, So we'll just take one last question, right? 7वीं बार कहाँ से है? Kriti, hi. Naveen final this side question. from E24. Hi, this side. So we are going to see you in 3 different characters, which is like Anika, then Janki, then Jassi. How are you managing this wide range of characters? Like, Jassi is in Ganpat. There's Shehzada also in the middle. yeah. How are you? What? देखना है ना Managing सबको। such a wide range of मेरे भाई की characters. पिक्चर है प्लीज। शहजादा starring Kartik Aaryan and Kriti Sanon and lot of other people also, but please Shehzada is coming, guys. There's time, Varun. Calm down. Yeah. What? Sorry, I didn't get your So question. how are you managing such a wide range of characters? मतलब अलग-अलग different characters हैं तो। ये नहीं है, हाँ, ये जो भी ये दिखा रहे हैं ऐसा नहीं है। I think I was fortunate to get such different characters around the same time. कोविड से हम निकले थे, अंदर थोड़ी भूख बहुत ज़्यादा थी काम करने की, and I didn't want to let go of any of these lovely films and lovely characters. Obviously थोड़ा difficult हो जाता है jumping from one to the other. I remember I was shooting for Bhediya and Adipurush simultaneously, and it was very chaotic because both are completely poles apart, you know, as films, as characters. But that's the fun of it, and it's lovely when you get amazing directors, you know, where you can just surrender and then they can take care of you. Right. Thank you. इनका एक नया घर है जहाँ पे Behave like a senior actor, I told you. Should we? Now we should, yeah? So we're going to cut a cake for Varun Yes. completing 10 years. And celebrate 10 lovely years. It's his Sir, you 10th wanted to birthday. say something, yeah. And till the time the cake comes, I don't think we'll get a better opportunity to say this. मैं और सचिन कभी भी कोई इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो हमको पूछते रहते हैं कि ये इतने रीमेक्स क्यों बन रहे हैं, वाई इज इट टेकिंग सो लॉन्ग फॉर ओरिजिनल म्यूजिक टू कम बैक. बट आई टेल यू विद दीनू सर वीव ऑलवेज डन ओरिजिनल म्यूजिक, एंड इट टेक्स अ प्रोड्यूसर लाइक हिम हु बिलीव्स इन द प्रोसेस, जो 10 गाने रिजेक्ट करते हैं और एक गाना अप्रूव करते हैं. आई डोंट थिंक अगर आप लोग इसके बारे में लिखने वाले हैं तो प्लीज़ लिखिए. इफ़ द प्रोड्यूसर स्टार्ट्स बिलीविंग इन द प्रोसेस अगेन तो ओरिजिनल म्यूजिक फिर से आना शुरू हो जाएगा. क्या बात है. On that note, also would like to invite on stage Keiko is here. Come on, give it up for him, ladies and gentlemen, the very talented artist here. Yeah, come on, everybody. Niren bhai, come up. On stage, please. And Pooja, please. हाँ ये this is to remind 10 साल हो गए. जिष्णु दा. And we'll be showing you the trailer one more time 3D में right after the cake cutting. So stay tuned. Pooja, come up. Pooja, Sharda, come up. Sharda, come on. Pooja, Sharda, come up. Come on.